Hello everyone. So welcome back to another session of web development course, and we are back with the calculator project. In the last day In before the last yesterday, we session, tried. Yeah, hello we everyone, made I this am Pranay. project. In the last session, we were little messed with those UI and the theme. So today I'm back with some fresh code written in a good manner as I promised in the last class. So today I will teach you many different concepts like how to switch the theme inside a website. Like see here, you can see that I have three different themes. This is what this is CSS variables, and this is the theme 2, and this is the theme 3. You can note one thing that I have the same variables in the theme 1, theme 2, and I'm sorry, in the theme 3. But the colors are different. So let me just go to my live server extension and run this. Okay. So now you can see this basic application of this calculator. In the last class, I had taught you how to set up a challenge from the front end mentor. This challenge is from frontendmentor.io website. This is a website where, if you don't know about this website, this is a website where you can find different challenges related to front end, back end, or full stack web development applications. Those are really cool applications, so you should must give a try to at least a beginner one. And in the last class, we were having some issues with the toggle switch, which Pranay gave some time after the class and managed to make a very nice UI. Okay, so first of all, I will be showing you a revision what we are actually making. So we are making this, and you can notice this is the three different themes. Now let's get back to our actual website. I had made this header part of what of this calculator. Now I will switch to theme 2. Now you can see this cool little animations is coming, and you can see the theme is also changing. I can also switch this with my arrow keys. So you can see that on the theme 1, this is the those colors and font and text colors. In the theme 2, everything is changing. In the theme 3, again everything is changing. So this is how I am doing. Now let me go to my JavaScript file and I will show you how I am doing it. I mean the back of this project. Okay. Now let's get started with the HTML. I will give a very quick review on what I'm actually doing in my HTML. Okay, fine, I guess. So first of all, what I'm doing, I'm Pranay, starting just with a the minute, simple excuse me. boilerplate. Then I'm Shubham is asking to speak in okay. Hindi so they can understand better. Okay, Shubham. Okay. सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट कोड जो कि मैं हमेशा डालता हूँ उसको यहाँ पर मैंने सेटअप किया टाइटल चेंज किया ठीक है स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक किया ये सारी चीज़ क्या है बेसिक चीज़ें हैं इसे ना भूलिए देन आई एम स्टार्टेड विद द आई एम दिस dev डॉट कंटेनर एक div है और उसका क्लास क्या है कंटेनर ये कंटेनर है क्या ये कंटेनर है इस पूरे चीज को जो कंटेन कर रहा है आई मीन अपने कैलकुलेटर को जो कंटेन कर रहा है उसे मैंने किसका क्लास दिया है कंटेनर क्लास दिया है उसे div नाम दिया है ओके देन उसके अंदर में सबसे पहला पार्ट जो मैंने दिया है वो क्या है हेडर यू कैन सी दिस इज द हेडर मतलब इसके अंदर ये जो भी कोड आ रहा है वो हेडर के अंदर है और वो हेडर क्या है ये ऊपर वाला जो पार्ट है यू कैन सी इन दिस इमेज देयर आर थ्री डिफरेंट सेक्शंस यू कैन से this is the header section this is the display section and this is the button section so first I had started with this header section in the header section I have these different div and labels ओके नाउ अब मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है नेम और इसके अंदर क्या है कैल्क ये क्लास क्या है नेम का नेम है नहीं ये बेसिकली इस चीज को इसको मैं लाइट थीम क्यों जाता हूँ ये कैल्क CALC ओके तो दिस इज क्या ये क्या है अपना डिव और क्लास क्या है नेम उसके बाद जो मैंने दिया है एक लेबल दिया है किसके लिए थीम के लिए लेकिन वेट मिनट लेबल किसके लिए दिया जाता है इनपुट के लिए इनपुट कहाँ पर है इनपुट तो इसके बाद में है ही नहीं इनपुट तो इस थीम बॉक्स के अंदर है और वो भी यार एक नहीं तीन तीन इनपुट है सो व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग है सो लेट्स गेट एक्सप्लेन करता हूँ मैं ये क्या है थीम बॉक्स क्या है ये जो पूरा आप देख रहे हो ना बड़ा वाला तो ये है थीम बॉक्स और इसके अंदर मैंने तीन रेडियो बटन्स डिफाइन किए इनपुट ये क्या है फिलहाल हाइड है मैं इसको सीएसएस में जाऊंगा
और इन बटन्स को मैं टारगेट करूंगा, सी दिस इज द इनपुट, और मैं क्या करूंगा, इनको टारगेट करूंगा हियर, दे शुड बी हिडन आई गेस, जस्ट अ सेकेंड, या नाउ यू कैन सी देयर, यू कैन सी ये क्या है, बट आपको दिख रहे होंगे इनपुट रेडियो बटन्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। लेकिन मैं जैसे ही इस कोड को क्या कर दूंगा, वापस अनकमेंट करूंगा, ये सारे हट जाएंगे। बेसिकली ऑल अनसेट से क्या होता है, उसकी जो पहले की प्रॉपर्टी जो भी होती है, बैकग्राउंड, बॉर्डर और न जाने क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीज उसकी all default properties are set to none, means in जो उसकी default नन बोलना यहाँ पर क्या है ना, शुरुआत में मैं भी कंफ्यूज रहता था। इनिशियल वैल्यूज में आ जाती है, इनहेरिट हाँ कर लेती है एक एग्जैक्टली, तरीके से। ये अच्छा बात है, अनसेट हो जाता है वो सारा प्रॉपर्टी। ओके, तो ये जो थीम है ना, केवल एक रेडियो बटन को रेफर करने के बजाय तीन तीन रेडियो बटन्स को रेफर करती है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यू कैन सी ये जो नेम प्रॉपर्टी है इन तीनों में सेम है, आईडी अलग अलग है, क्लास एक सेम है, और एक दूसरा क्लास उन सभी को एक दूसरे से डिफरेंट बनाने के लिए। ओके, तो फिर ये क्या है, ये आखिर में ये क्या चीज है, स्पैन क्लास इज इक्वल टू बॉल। तो ये जो चीज एक्चुअली में, ये तो मैंने हाइड कर दिया, अभी आपने देखा ना, मैंने जैसे ही ऑल अनसेट प्रॉपर्टी लगाया, ये तीनों चीजें क्या हो गई, हाइड हो गई। तो फाइनली जो ये मूव कर रहा है ना, ये दिस इज अ बॉल, ये जो क्या गेंद की तरह इधर उधर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड, मैंने इसको कहा है एक बॉल का, और ये क्या है, स्पैन। ये काम क्या कर रहा है, मैंने इसको किस तरीके से स्टाइल किया है, ये देखिए, ये डॉट बॉल है, मैंने इसको वेड्थ दिया 2em, हाइट दिया 2em, पोजीशन क्या कर दिया मैंने, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अब उसमें उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, अलाइनमेंट, वो सब उस पर काम नहीं करती है, सारी उस पर पोजीशन कुछ, प्रॉपर्टीज वो अपनी वाली ओरिजिनल खो देता है। उस पे एक नए सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे कि यस। मैंने किया लेफ्ट 4 पिक्सल एंड टॉप 4 पिक्सल। अच्छा, इसके लिए आपको सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और इसमें 2 मिनट और दूंगा इसको एक्सप्लेन करते हुए। उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, थीम टॉगलर बॉक्स, बिकॉज दिस इज व्हाट, सबसे हॉट टॉपिक जो आज का है ना, वो है थीम टॉगलर बॉक्स। और ये एक्चुअली काम कैसे करता है, तो ये थीम टॉगलर, पहले स्टाइल्स के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम स्टाइल समझेंगे कि बॉक्स जो है, ये बाहर का जो बॉक्स है, ये कैसे काम करता है। ओके, बैकग्राउंड मैंने दिया है इसको bg2, ये क्या है, वेरिएबल, ये तो सही है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ओके, दिस इज काउंटर रीसेट थीम, ये क्या है, इसको हम अभी आगे भी इसको चीज को समझेंगे, फिलहाल इसके आगे चलते हैं। पैडिंग, तो पैडिंग मैंने दिया है 4 पिक्सल का, मतलब ये जो इसके बाहर साइड में देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में स्पेसिंग है, अगर मैं इसको जूम कर पाता हूँ, लेकिन मैं कर पा रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में यू कैन सी देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन दिस रेड स्मॉल बट, आई मीन रेड स्मॉल बॉल एंड दिस आउटसाइड, सो दिस इज व्हाट पैडिंग। ओके, नाउ डिस्प्ले फ्लेक्स, अब ये क्या फ्लेक्स, क्या फ्लेक्स है क्यों, तो मैंने जो ये प्रॉपर्टी था ना, ये इनपुट का, इसके लिए मैंने दिया है फ्लेक्स, मतलब ये तीनों जो चीजें हैं वो एक लाइन में इस तरीके से आ गए फ्लेक्स देने के कारण। अलाइन आइटम सेंटर करने से वो सभी सेंटर में हो गई, और गैप 0.5 em का मैंने दे रखा है, इन दोनों के बीच में गैप क्या है, 0.5 em। बॉर्डर रेडियस मैंने दिया है 20 पिक्सल, ये जो ऐसे गोल सा दिख रहा है आपको। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पोजीशन रिलेटिव, और उसके नीचे मैंने कमेंट में एक लाइन लिखा है, टू कंट्रोल द बॉल, हाउ डज दिस कंट्रोल्स द बॉल। ये बॉल है क्या, सबसे पहले तो मैं इसको वापस अनसेट करूंगा यार, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द बॉल एंड आई एम डूइंग दिस पोजीशन रिलेटिव टू कंट्रोल द बॉल। यहाँ से आपको मैं इतना जोर स्पेशली दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये पोजीशन रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा आज बता सकता हूँ। पोजीशन रिलेटिव मैंने दिया किसको, पेरेंट को दिया, ये जो बाहर वाला चीज है, उसके अंदर मैंने यहाँ पर इसको दिया, इस बॉल में, अब आइए इस बॉल के स्टाइल में, और यहाँ पर मैंने इसको दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। अब सॉल्यूट देने से क्या हो गया, अब ये जो भी चीज है ना, ये अंदर का जो बॉल है, अब ये अपने पेरेंट वाले चीज से बिहेव करेगा, मतलब जिसको भी सबसे नजदीक जो चीज होता है, जिसको कि पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ होता है, वो उसके हिसाब से काम करेगा। ये आई उसके होप कि रिलेटिव में इसकी पोजीशन हो जाएगी, जिसमें भी एग्जैक्टली, जिस पेरेंट में भी पोजीशन रिलेटिव डाला है, एब्सोल्यूट वाले की पोजीशन उसके रिलेटिव में हो जाएगी एक तरीके से।
अब उसके बाद मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर कर दूं ना, इन दो चीजों को हटा दूं, लेफ्ट एंड टॉप, नाउ सी कि व्हाट इज गेटिंग चेंज। लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, हियर इज नथिंग इज चेंजेस बिकॉज मैंने एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं दिया, बट एक्चुअली ये देखिए अब ये प्रॉब्लम हो गया। अब मैंने इसको जब छोटा कर दिया, मैं इसे छोटा इसलिए करके बता रहा हूँ बिकॉज अगर ये स्क्रीन साइज चेंज होता है ना, तो दिस माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। और अगर आप देख भी रहोगे, ये नॉट एग्जैक्टली दैट मच परफेक्ट। इसमें ऊपर कुछ ज्यादा स्पेसिंग है, नीचे कुछ कम स्पेसिंग है, एक इवन स्पेसिंग नहीं है। या फिर पॉसिबल क्या है, किसी दूसरे स्क्रीन पर ये इवन स्पेसिंग नहीं हो सकता है। तो मैं इस लेफ्ट और राइट टॉप को करूंगा। और ये मैंने 4 पिक्सल क्यों दिया, मैंने इस पैडिंग जो दिया था ना, इस बाहर वाले बॉक्स को 4 पिक्सल, उसको ये सूट करे उस लिए से दिया है। अगर मैं इसको कर दूं 0 एंड देन सेट टू 0, ओके, नाउ सी अब ये सबसे ऊपर चला गया, मतलब अपने कंटेनर के सबसे ऊपर की ओर चला गया 0,0 देते हुए। और 4,4 कर दिया अगर, तो लेफ्ट से भी 4 और ऊपर से भी 4 नीचे आ गया। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब बैकग्राउंड क्या है, बॉर्डर रेडियस क्या है, ये सब तो आई होप आप समझ रहे होगे। अब इसे समझना है इस चीज को, डैश डैश ट्रांसलेट एक्स टू सेट टू व्हाट, सेट टू 0, दिस इज अ वेरिएबल। और ये वेरिएबल कहाँ डिफाइंड है, डॉट बॉल के अंदर डिफाइंड है। और ये मैंने क्या लिखा है, टू कंट्रोल यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। और ये वेरिएबल मैंने इसलिए डिफाइन किया है ताकि मैं बाद में और एक वेरिएबल को वहीं पर एक्सेस किया जा सकता है, जैसे आप जिस भी एलिमेंट में उसको अप्लाई करेंगे उसके चिल्ड्रन या केवल उसमें ही यूज कर सकते हैं। सही है ना प्रिय? तो मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, वेरिएबल ट्रांसलेट एक्स। ये शुरुआत में क्या है, ट्रांसलेट एक्स 0 है, तो ट्रांसलेट एक्स जो होगा ये मतलब क्या है, इधर कुछ नहीं जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको अगर बढ़ाकर लिख दूँ राउंड 33%, खैर मैंने जावा स्क्रिप्ट में से सही से कोड किया है, तो इसे रिफ्रेश करूँ अगर, तो ये सी ये चेंजेस आ रही है 33%, ये आगे जा रहा है। बट वी डोंट नीड ओनली 33%, हमें इसे, मैं इसे बाद में समझाता हूँ कि हमें एग्जैक्टली कितना इसे मूव करना होगा। 33% से ये इतना सही क्यों कर रहा है, 100% से कितना करेगा, हमें बिल्कुल परफेक्टली जिस तरीके से काम कर रहा है उसके लिए कितने पोजीशन, मतलब ऐसे कैलकुलेशन होता है यार, यू हैव टू डू इट इन योर माइंड। और दिस इज कॉल्ड समथिंग एज लॉजिक, कि आप कितना बढ़िया लॉजिक अपने कोड में लगा रहे हो। तो this is something you can call as jugaad, but they are something which can blow your mind, like they are cool when they work. Okay, so transition is 0.4 second and ease out, these are simple thing, मैं focus कर रहा हूँ logic पे। Okay, now let's come to our javascript। सबसे पहले मैंने किसको टारगेट किया, अपने बॉक्स को टारगेट किया, टॉगल बॉक्स जो कि है बाहर वाला ये बॉक्स। फिर मैंने किसको टारगेट किया, टॉगल बॉल, बॉल क्या है, अपना ये गेम जो इधर उधर कूद रहा है। फिर मैंने बॉडी को टारगेट किया। ओके, अब मैंने यहाँ लिखा है स्विच द थीम एंड रीपोजिशन द टॉगल, मतलब थीम को चेंज करना है और इस टॉगल के पोजीशन, ये जो टॉगल है ना, इसको रीपोजिशन करना है। मतलब ये क्या यहाँ पर है, अभी ये यहाँ आ गया, अभी ये यहाँ आ गया, और थीम भी, बैकग्राउंड का थीम भी चेंज हो रहा है। ओके, अब मैं बताऊंगा कि थीम कैसे चेंज होता है और किस तरीके से काम करता है। सो सी है, मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, बॉडी डॉट थीम वन। अगर बॉडी में थीम वन क्लास होता है तो ये वेरिएबल्स डिफाइन होंगे। अगर बॉडी में थीम टू होता है तो ये सारे वेरिएबल्स डिफाइन होंगे। अगर बॉडी में थीम थ्री होता है तो ये सारे वेरिएबल्स डिफाइन होंगे। ठीक है, अब बॉडी का ये स्टाइल्स यहाँ पर आ गया। फिलहाल शुरुआत में क्या, बॉडी में कोई भी स्टाइल नहीं है, आई मीन कोई भी क्लास नहीं है, तो हम इंटेंशनली यहाँ पर बॉडी में एक क्लास ऐड कर देंगे, किसका, थीम वन का। अगर हमें, मैं इस चीज़ को ऐसे ऑफ कर दूँ ना, मैंने क्या कर दिया, इसको भी कमेंट आउट कर दिया। नाउ यू कैन सी ये कुछ आया ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने कुछ कलर चेंज किया ही नहीं, मैंने कोई थीम ऐड किया ही नहीं, सो नो कलर्स आर गेटिंग एडेड। ओके, अब मैं इसको ऐसे अंदाज लगाकर अगर यहाँ पे मैं करूँ, नाउ यू कैन सी आगे ये चेंज हो गया। तो ये क्यों हो गया, क्योंकि इसके आगे वाला जो कोड था उसने लॉजिक हैंडल कर लिया और बॉडी में कुछ ना कुछ क्लास ऐड कर दिया, बट इनिशियली कोई भी क्लास ऐड नहीं था। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास ऐड कर दिया थीम वन का। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट थीम, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, डिफॉल्ट थीम, तो थीम वन है। ओके, ना उसके बाद ये एक फंक्शन है, उसे कहाँ कॉल किया जा रहा है,
इसमें हैंडल टॉगल क्लिक, और कब कॉल किया जा रहा है, जब टॉगल बॉक्स पर एक क्लिक इवेंट हो। तो बेसिकली टॉगल बॉक्स पर मैंने एक इवेंट लिस्नर दिया। ये बात आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए कि मैं इवेंट लिस्नर किस पे लगा रहा हूँ। मैं इवेंट लिस्नर इन छोटे छोटे ये बटन्स थे ना, मतलब अपने क्या उसको थे, वो रेडियो बटन्स, उन पे नहीं लगा रहा हूँ, उनके बॉक्स पे लगा रहा हूँ। तो टॉगल बॉक्स डॉट एड इवेंट लिस्नर, इस पूरे बॉक्स पर मैंने एक इवेंट लिस्नर लगाया है कि बॉक्स पे कहीं भी अगर क्लिक होता है ना, तो इस फंक्शन को कॉल किया जाए। ऐसा क्यों किया बताओ। अगर मैं रेडियो बटन्स पे लगाता तो सबसे पहली बात तो यार 3 कोड लिखना पड़ता, तो मोर नंबर ऑफ कोड, तो मैं मोर नंबर ऑफ कोड से बच गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल होता है DRY, यानी डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो अगर आप कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो ये बेटर होता है। ओके, ये एक प्रिंसिपल है, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात बोली। दूसरा क्या होता है, जो फ्रंट एंड जो आप देखते हो, जिसको आप डॉम कहते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है उसमें इवेंट बबलिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। बबलिंग मतलब आप इसको उस तरीके से समझ सकते हो कि आप अगर एक नदी या तालाब में एक पत्थर मारते हो, तो किस तरीके से वो एक बबल बन के आगे बढ़ता है। अगर आपने से 12th में वो पढ़ा हो ना, वेव एंड फ्रिक्वेंसी काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो किस तरीके से एक दूसरे से रिपल्स टकराती हैं, उनमें से एक वेव बनता है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हैपेंस ऑन आवर डॉम, आवर वेबसाइट। यहाँ पर भी उसी तरह का एक चीज होता है कि जब इवेंट मतलब जैसे बटन आप क्लिक करते हो ना, तो वो ऐसे राउंड से बबल टाइप का निकलता है और धीरे धीरे करके आपके पूरे वेबसाइट को वो अपडेट करता है। हाउएवर ये काफी फास्ट होता है, तो आपको ऐसे पता नहीं चलता है, मैं बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये काम हो जाता है, बट आपको पता नहीं चलता। बट अगर मैं इन तीनों में लगा दूं ना वो इवेंट लिस्नर्स, तो तीनों में अलग अलग एक क्लिक इवेंट होगा। तो वहां पर क्या होगा, एक इवेंट के बबल दूसरे इवेंट से ना कैसे टकराएंगे, एंड वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि एक पेरेंट पर अगर केवल लगाया जाए और फिर इंडिविजुअली चेक किया जाए कि उसके चाइल्ड पे क्लिक किया गया है कि नहीं। हमें क्या चाहिए इसमें से, देखिए इस बॉक्स में कितने एलिमेंट है, आई मीन इसके कितने चाइल्ड हो रहे हैं, इसके 4 चाइल्ड है, ये है, ये बॉक्स है, इसके 4 चाइल्ड है, 3 रेडियो बटन हैं और एक क्या है, बॉल है। तो मैं चेक कर लूंगा ना, एक बार मैंने बस लगा दिया बॉक्स पे एक क्लिक इवेंट, और फिर मैं आई मीन उसके क्या वो कहते हैं ना, मैं उसका इंटेंशनली फिर चेक कर लूंगा कि उसके रेडियो कौन से रेडियो बटन पे क्लिक किया गया है। तो आई होप कि ये बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट है वैसे तो ये, तो मैंने बस एक इंट्रो दिया है इसका। आप इंटरनेट से इसके बारे में और भी जानकारी लीजिए, मैं कहूँगा यू शुड गो एंड शुड नो अबाउट दिस कंसेप्ट इवेंट बबलिंग। दिस इज अ रियली वेरी मच what you can say interesting concept. And Web Dev Simplified has also uploaded a video regarding this that is very informative. Yeah, he is really amazing YouTuber. Okay, so now let's get and now let's understand this handle toggle click function. ओके, सो मैंने इस फंक्शन के अंदर एक ई पास किया। ये ई क्या है, ये जो क्लिक होगा ना उसके सारे प्रॉपर्टीज को ये देगा, ठीक है। मतलब वो कहाँ पर क्लिक हुआ है, कितने इंटेंसिटी के साथ क्लिक हुआ है, एंड मेनी अदर फंक्शंस जो कि अभी हम आगे एक्सप्लोर भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा कॉन्स्ट इज थीम क्लिक्ड, क्या थीम पे क्लिक किया गया है। ये थीम क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने चेक किया कि क्या किसी भी रेडियो बटन पे क्लिक किया गया है या फिर इस बॉल पे क्लिक किया गया है। अब यू कैन सी, अगर ऑलरेडी ये पहले वाले क्लास पे है, तो ये कहीं पर भी क्लिक करे, आई मीन मेरा कहने का मतलब है ये बॉल पे क्लिक करे तो हम थीम क्यों चेंज करें, ये ऑलरेडी उसी पर है। तो मतलब एक ही काम जो ऑलरेडी हो रखा है उसको दोबारा करने का तो कोई मतलब है नहीं। एक बार प्रणय ई डॉट टारगेट को कंसोल लॉग करके दिखा दो। ओके, मैं दिखाता हूँ। जिससे ये तो मैं क्लियर हो जाएगा कि हमने टॉगल बॉक्स पर भले ही लगाया हो क्लिक इवेंट लिस्नर, लेकिन ओके, टारगेट तभी भी उसके चिल्ड्रन है। ठीक, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये क्या आ रहा है, बॉल आ रहा है। अभी मैंने क्लिक किया, ये क्या आ रहा है, एक इनपुट आ इनपुट रहा है। रेडियो बटन आ रहा है। अभी मैंने क्लिक किया, ये क्या आ रहा है, रेडियो। नाउ यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि पहले क्लिक किया था तो बॉल आ रहा था, अब क्लिक करूंगा तो ये इनपुट आ रहा है, अब दोबारा क्लिक करूंगा तो बॉल आ रहा है। यू कैन सी ये टारगेट क्या है, ये टारगेट। नाउ यू कैन सी मैंने इन सभी के बाहर से ये देखिए पैडिंग वाले एरिया पे क्लिक किया, तो अभी ये क्या आ रहा है, ये पूरा बॉक्स ही आ रहा है। मतलब इसका टारगेट जो है, मैंने इसका मतलब कि यूजर जो है वो इंटेंशनली उस बॉक्स को टारगेट करना चाह रहा है,
वो किसी उसके चाइल्ड को नहीं, पूरे बॉक्स को ही टारगेट करना चाह रहा है। तो दिस इज क्या, ये टारगेट देता है। तो मैंने क्या कर दिया, टारगेट के क्लास लिस्ट में मैं गया, टारगेट डॉट क्लास लिस्ट। ये जो, अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करके कर दूं ना, डॉट क्लास लिस्ट, और फिर मैं करता हूँ, लेकिन सी ये क्या आ रहा है, बॉल आ रहा है, आई कैन सी। ये क्या आ रहा है, थीम टू एंड थीम। इस दूसरे वाले रेडियो बटन के ऊपर क्या था, थीम टू एक क्लास था और एक थीम क्लास था, इग्नोर अदर थिंग्स। ये थीम थ्री क्लास था और थीम था, पहले वाले रेडियो बटन पे थीम वन और थीम क्लास था। सो इट इज कमिंग, यू कैन सी दिस इज एन एरे डॉम टोकन लिस्ट। जहां पर भी नोड जेएस में या फिर जावास्क्रिप्ट में लिस्ट आए, इवन पाइथन में लिस्ट इज द एरे। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एन एरे, दिस इज एन एरे, or you can say a special kind of array. All the array methods can be applied to array, node list, and DOM Yeah, token you can list. So say that don't confuse with most that. of the array methods can Yes. be directly applied to this. But don't get confused with the array and this. This is Same very similar concept. to array. Yes. ओके, सो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन अप्लाई किया, डॉट कंटेन्स थीम। तो ये कंटेन्स क्या रिटर्न करता है कि ये एक एरे में चेंज चेक करता है, ये क्लास लिस्ट क्या है, एरे है, यू शुड, मैंने अभी बताया ना एरे है। तो इस एरे में चेक कर रहा है कि क्या थीम है। तो अगर थीम है तो ये क्या हो जाएगा, इस क्लिक थीम क्लिक्ड ट्रू हो जाएगा, और अगर थीम नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए मैं क्या करूंगा ना, इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करके चेक करता हूँ, इज थीम clicked, okay. Just to give you more clarity about what I am doing. So see, अभी क्या है, इस बॉल पे मैंने क्लिक किया, थीम है नहीं है। अब मैं एकदम इंटेंशनली बॉक्स पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी अगेन ये दो आ गया यहाँ पे, मतलब क्या फॉल्स रिपीट हुआ, मतलब थीम नहीं है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी ट्रू आया। इसका मतलब क्या है कि ये थीम था इसके क्लास में। फिर से यहाँ करूंगा ना, यू कैन सी अगेन ये ट्रू आया और ये ट्रू हो गया। अगर मैं बॉल पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी बॉल पे क्लिक करूंगा तो ये फॉल्स आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो इसके आगे मैंने क्या किया, इज थीम क्लिक्ड, अगर थीम क्लिक्ड है, इफ दिस इज ट्रू, इसका मतलब ये इफ केस रन होगा। अब मैंने यहाँ पर जो किया, ये आपको समझने वाला एक चीज है, थीम नम। यू कैन सी ये जो क्लास आ रहा था, जैसे कि ये जो क्लास था ना, थीम वन थीम टू, सॉरी है थीम वन थीम टू एंड थीम थ्री। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले ई डॉट टारगेट डॉट आई डी, सी ये आईडी क्या है, थीम वन थीम टू एंड थीम थ्री। इस आईडी को मैंने टारगेट किया और इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, अपने अंदर एक पैरामीटर लेता है, एक स्ट्रिंग पैरामीटर, जो कि जैसे यहाँ पर मैंने डैश दिया, तो अब इस डैश के लेफ्ट साइड जो भी होगा वो एक एलिमेंट बन जाएगा, राइट में जो भी होगा वो एक एलिमेंट बन जाएगा। ये होप मैंने ये चीज मैंने पहले बता रखा है, और होप कि मुझे दोबारा उतना अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं पड़े, आप यूं ही समझ जाओ। फिर It's मैं एक basically ट्राई दे रहा हूँ। returns an array with splitted. नाउ यू कैन सी मैंने क्या किया, ए डैश वी डैश सी स्प्लिट, हाँ हाइफन। नाउ यू कैन सी एक एरर रिटर्न हो रहा है जिसमें तीन एलिमेंट है, ए वी एंड सी। एंड जिस एलिमेंट से चेक किया जाता है वो खुद हट जाता है उसमें से, जैसे इसमें से डैश हट गया। हम्म, तो ये थीम नम में एग्जैक्टली क्या जाएगा, आप में से कोई है जो बता सकता है कि थीम नम में क्या जाएगा? आप खुद से सोचने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या किया, id डॉट स्प्लिट, और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को, आई मीन जीरो से स्टार्ट होता है, बी केयरफुल। इसका मतलब मैंने दूसरे वाले वैल्यू को, जैसे यहाँ पर मैंने वन अगर करूँ इसके आगे से सी, मैं दोबारा इस कोड को लिखता हूँ और मैं कर दूं यहाँ पर वन, अब ये वी आ रहा है। तो आप में से है कोई जो बता सकता है कि एक्चुअली में मुझे थीम नम के अंदर क्या मिल रहा होगा? ओके, हाँ लेट्स, मैं यहाँ पे जाता हूँ कंसोल लॉग में, चेक करूंगा थीम नम। ओके, तो मैं पहले सबसे पहले अगर इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये थीम क्लिक फॉल्स होगा। बॉल पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, सी दो आ रहा है, इस पे क्लिक किया तीन आ रहा है, पहले वाले पे क्लिक किया तो फर्स्ट वन आ रहा है। तो दिस इज व्हाट कि थीम नम में हमें मिल रहा है। तो ये मैंने किया क्यों, ये इतना पूरा मतलब ताम झाम मैंने किया क्यों? जस्ट टू चेक कि हमें किस थीम पर स्विच करना है, क्योंकि मैंने पेरेंट पे ये लगाया, एक एक सिंगल क्लास से चेक किया कि थीम वाले किसी भी रेडियो आइकन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड जस्ट उसके बाद मैंने क्या किया,
और जस्ट उसके बाद मैंने क्या किया, एनिमेट टॉगल बॉल, ये मैंने एनिमेट किया है। और ये यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए चेंज्ड द थीम ऑफ वेबसाइट। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने इस कोड को देखिए कि मैंने वेबसाइट के थीम को कैसे चेंज किया। तो बॉडी डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू थीम, ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स। वैभव ने भी कल आपको बताया था प्रोजेक्ट में, मैंने भी पहले बताया, अभी बता रहा हूँ। स्ट्रिंग लिटरल्स में किसे, ये इससे, ये इस साइन से शुरू होता है। इस साइन को क्या कहते हैं वैभव, बैक टिक्स, या बैक टिक्स या टिल्डन, फिर टिल्डन, हाँ, दोनों कहते हैं, टिल्डन या बैकटिक। नो वैभव, टिल्ड शायद इसे कहते हैं। हाँ हाँ, टिल्डन ऐसे कहते हैं, सॉरी, बैकटिक कहते हैं इसे। हाँ, तो सो थीम मैंने लिखा, ये मैंने क्लास नेम यहाँ पर ऐड किया। रिमेंबर कि मैंने बताया था ये थीम 3, थीम 2, थीम 1 अगर क्लास होगा तो फिर वो चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली, ये थीम में चेंज होगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको बॉडी। नाउ यू कैन सी अभी क्या है, ये थीम 1 है ना। ओके, मैं यहाँ पर जाऊंगा और जैसे इस पर क्लिक करूंगा, नोटिस हेयर, अब ये क्या हो गया, थीम 2। तो यही थीम 2 हो रहा है, ये थीम नम क्या था, 2 था, और थीम 2 हो गया। अब मैं तीसरे वाले पे क्लिक करूंगा तो थीम 3 हो जाएगा, पहले वाले पे क्लिक करूंगा तो थीम 1 हो जाएगा। नो कैन सी, थीम 1 जो भी रहता था उस हिसाब से बॉडी का क्लास अपडेट हो जा रहा था, और क्लास अपडेट होने से क्या हो रहा है, थीम भी अपडेट हो रहा है। तो सारे तुम्हारा, वेरिएबल्स चेंज हो रहे थे। तो आज तुम्हारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एक लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट से किस तरीके से हम पूरा उसका ये चेंज कर सकते हैं, थीम ठीक। चेंज कर सकते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि ये जो एनिमेशन मैंने किया है, अगर मैं इस लाइन को अगर हटा दूं तो ये एनिमेट नहीं होगा, या फिर इनफैक्ट यहाँ तो मूव भी नहीं करेगा। मैंने दोनों चीज साथ किया है। तो ये क्या है, टॉगल बॉल डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी। रिमेंबर कि जब हम सीएसएस लिख रहे थे, मैंने यहाँ पर लिखा था एक सीएसएस वेरिएबल ट्रांसलेट एक्स। तो इस सीएसएस वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो टॉगल बॉल डॉट स्टाइल, स्टाइल से क्या करते हैं हम उसके सीएसएस में जाते हैं। रिमेंबर, स्टाइल टॉगल बॉल डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, अगर मैं चेंज कर दूं तो उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अगर मैं डॉट सेट प्रॉपर्टी में जाऊं तो मैं किसी भी सीएसएस वेरिएबल को चेंज कर सकता हूं, बट वी शुड फोकस कि टॉगल बॉल के अंदर हो वो सीएसएस वेरिएबल भी, हम उसके अंदर में ही आई मीन टू से कि चेंज कर रहे होंगे केवल। फिलहाल इस वाले केस में क्या, ये तो इसके ही अंदर था ही, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर चेंज करने से। जैसे ये होता था ना कॉन्सेप्ट, लोकल स्कोपिंग ऑफ वेरिएबल्स, ग्लोबल स्कोपिंग, नॉर्मल लैंग्वेजेस में होते हैं ना। सीएसएस तो खैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, स्टाइलिंग लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लोकल स्कोपिंग वाला कॉन्सेप्ट है। तो सो ट्रांसलेट एक्स सबसे पहले मैंने पास किया, और उसके बाद दूसरा जो इसमें यू कैन फोकस हियर कि ये सेट प्रॉपर्टी 2 पैरामीटर लेता है। पहला कि हम किस एक्चुअल प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हैं, तो हम इस वेरिएबल को टारगेट कर रहे हैं डैश डैश ट्रांसलेट एक्स। ये डैश डैश लगाना एक कंपलसरी टाइप का चीज है, और ट्रांसलेट एक्स मैंने नाम दिया है। उसके बाद दूसरा चीज एक और स्ट्रिंग लेता है, जिसमें कि बेसिकली पूछता है उसमें क्या वैल्यू जो है हमें डालना है। तो यहाँ मैंने एक सीएसएस का एक ये पास किया है कैलकुलेट फंक्शन के अंदर। ये कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है ना, जब हम 2-3 अलग अलग यूनिट्स में सब सीएसएस कुछ वैल्यू देते हैं ना, तो हम कैल्क फंक्शन से दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने अभी दिया है EM और परसेंट वैल्यू, ये दोनों मैंने साथ में दिया है, फिर भी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि कैल्क फंक्शन जो है ना इनसाइड बिल्ट होता है सीएसएस में, और वो मतलब ऐसे रन करने से सीएसएस को पहले वो कैलकुलेट करके उसे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जिस भी यूनिट में कन्वर्ट करता है वो कर लेता है। तो मैंने दिया है क्या, 0.5 EM इंटू थीम नम। यहाँ पर अब देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर ये थीम नम अगर 1 रहे, इट मीन्स क्या, जैसे यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ इस वाले पे क्लिक कर दिया, अगर जैसे अभी मैं क्लिक करूंगा, नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये थीम नम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि थीम नम जो होगा 1, इट मीन्स 1 - 1 दैट इज 0, एंड 0 इंटू 0.5 EM क्या हो जाएगा, 0। लेकिन मैं यहाँ पर क्या, थीम नम -1, सो थीम नम -1 अगेन व्हाट इज, इट विल बी 0, सो 0 इंटू 100% शुड बी 0। सो बेसिकली पूरा का पूरा क्या है, 0। सो इसका मतलब अगर ये पहले वाले पे क्लिक किया जाता है तो ट्रांसलेट करना ही नहीं है उसको, बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा दूसरे वाले पे, तो थीम नम शुड भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर थीम नम -1 क्या हो जाएगा, 1, इट मीन्स 0.5 EM। अब ये 0.5 EM क्यों दिया मैंने,
मैंने यहाँ पर इन दोनों फ्लेक्स, जब मैं फ्लेक्स डिफाइन कर रहा था हियर, मैंने गैप कितना दिया था, 0.5 EM। तो हमें भी इन दोनों के बीच में, इसे मैंने 100% सी, अगर मैं केवल 100% अगर करूंगा ना, मैं यहाँ पर से इस वाले लाइन को टेम्पोररली हटा रहा हूँ, ठीक है। यू कैन सी, अगर मैं यहाँ करूंगा, ये 100% चल रहा है, लेकिन यू कैन सी ये पूरा ओवरलैप नहीं कर रहा है। क्यों? 100% तो आगे चल गया, लेकिन उस गैप को भी तो पार करना चाहिए। यू कैन सी अपने पहले वाले पोजीशन से ये बिल्कुल 100% आगे बढ़ गया, बट वी हैड गिवन अ गैप, सो हमें वो देना होगा। तो मैंने क्या किया, एक गैप दे दिया 0.5 EM का, और ये 100% इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 100% आगे बढ़ जाएगा। जब ये यहाँ पर 3 पे क्लिक करूंगा, तब ये थीम नम क्या होगा, 3 होगा। 3 - 2 दैट विल बी 1 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 1 EM गैप हो जाएगा। मतलब 0.5 EM यहाँ पर का गैप, 0.5 EM यहाँ पर का गैप, 100% एक बार यहाँ से यहाँ चलने के लिए, 100% यहाँ से एक बार यहाँ चलने के लिए। सो दिस इज कि हमारा पूरा जो ये थीम वाला टॉपिक था, टॉगल बॉक्स के साथ पूरी तरीके से मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। जस्ट एक छोटी चीज रह गई है कि वो मैंने ये चीज कैसे किया, 1, 2 एंड 3, ये मैंने किस तरीके से डिफाइन किया है, ये थोड़ा यूनिकली मैंने डिफाइन किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताऊं। ओके, सो ये मैंने क्या किया है कि इनपुट पहले मैंने डिफाइन किया, ऑल अनसेट कर दिया, वेड्थ दे दिया उनको, पोजीशन क्या कर दिया है, रिलेटिव। ओके मैंने इस चीज को पोजीशन रिलेटिव क्यों किया, मैंने भी बोला था कि पोजीशन रिलेटिव उस पेरेंट का किया जाता है जिसके चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट देना होता है, या फिर उसके किसी नजदीकी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट देना होता है। बैकग्राउंड कलर मैंने इस चीज को ट्रांसपेरेंट रखा है, ये इनपुट किस चीज को कह रहा है, ये रेडियो बटन को कह रहा है। ओके, सो ये आफ्टर, देखिए जिसे कहते हैं स्यूडो एलिमेंट्स, क्या कहते हैं इसे, स्यूडो एलिमेंट्स। और इस चीज को यूज करने के लिए हमें पोजीशन एब्सोल्यूट जो होता है वो देना होता है, और एक कंटेंट पास करना होता है। नाउ यू कैन सी हियर, मैं क्या कर रहा हूँ, इस थीम बॉक्स को दे रहा हूँ काउंटर रिसेट थीम। मतलब ये 1, 2 एंड 3 देने के लिए, मैंने पता करने के लिए मैंने दिया है ये थीम, मैंने ये बस एक तरीके से आप याद रख सकते हो, ये काउंटर रिसेट एक फंक्शन, एक प्रॉपर्टी है जिसे कि हमें एक नाम देना होता है, मैंने दिया है बेसिकली इसे इंट थीम। डिक्लेयर करने के लिए होता है ये एक सीएसएस में। थीम नाम का एक इंटीजर डिक्लेयर हो गया जिसकी वैल्यू हो गई 0, तो उसको इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया, सिंपल। उसके बाद मैंने काउंटर इंक्रीमेंट, मतलब यहाँ पे बढ़ाना है, किसे बढ़ाना है, थीम को बढ़ाना है। और कंटेंट मतलब इस आफ्टर का कंटेंट क्या होगा, तो काउंटर थीम, अगर मैं इसे चेंज करके लेट से अगर मैं कर दूं ना 1, तो यू कैन सी अभी ये काम करने, बेसिकली ये इस तरीके से होना चाहिए स्ट्रिंग था पास ना, यू करनी कैन सी पड़ेगी, हाँ। तीनों में 1 हो गया। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी पास कर दूं, वो सब में आ जाएगा, यू कैन सी ये। तो ये वही चीज कर रहा था। तो ये काउंटर एक स्पेशल फंक्शन है, CSS में फंक्शन है, उसके अंदर मैंने थीम को पास किया। तो थीम क्या, 1 से शुरुआत होकर, जब भी ये एक आगे जाएगा, 3, 1 पहले वाले में एलिमेंट आया, उसमें 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3 आ गया। अब ये पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने दिया है बिल्कुल सेम, ये पोजीशन एब्सोल्यूट किसके रिलेटिव काम कर रहा है, इस इनपुट के रिलेटिव काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, स्यूडो एलिमेंट। स्यूडो एलिमेंट एक तरीके से क्या है, इसको डॉगी समझ सकते हो, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, रिस्पेक्टफुल नहीं है, बट इस काइंड ऑफ, ये मतलब अपने इस इनपुट के लिए एक मतलब बहुत ट्रस्टेड, बिल्कुल मतलब वफादार काइंड ऑफ चीज रहता है, कि ठीक है जैसा सर आप बोलोगे मैं वैसा काम करूंगा। इट्स लाइक द स्लेव ऑफ दैट एलिमेंट के ये होता है उसके साथ अटैच्ड, और इसको वही करना पड़ेगा जो मतलब इसका मेन एलिमेंट चाह रहा है। ये पोजीशन एब्सोल्यूट है, टॉप 0 है, लेफ्ट जो है 40% है। ये काइंड ऑफ मैंने बस इसको थोड़ा सेंटर अलाइंड हो जाए, बस इसलिए मैंने उसे दिया है, नथिंग फैंसी। ओके नाउ दिस इज फैंसी, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y -150%। अगर मैं इसे 0 कर दूं तो क्या होता है भाई, चलो देखते हैं। मैं कैन सी अब ये यहाँ पर आ चुका है। तो मैंने इसे यहाँ पर दिया था ट्रांसलेट -50%, ताकि ये थोड़ा ऊपर चला जाए, दैट्स एंड इट। ये नाउ प्योर उस पर हिट एंड ट्रायल बेसिस पे होता है 150, ये भी ट्राई करके देखना पड़ता है आपको खुद। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये मतलब कुछ ऐसा नहीं है, हो सकता ये है जब ऐसा कोई इसे, मैजिक नंबर नहीं है कि हाँ आपका हो सकता अचानक है से अगर इसे दिमाग में आ छोटे जाए। स्क्रीन पर जाया जाए, लेकिन चाहिए अभी ये रिस्पॉन्सिव तो बिल्कुल नहीं है, मुझे इसे रिस्पॉन्सिव बनाना होगा, तो उस वक्त मुझे इसे थोड़ा कम या फिर कुछ ट्विक करना होगा। नहीं, तो प्रणव इनपुट, एक्चुअली जूम्ड इन है ना, इसलिए रेस्पॉन्सिव नहीं दिख रहा तेरे को। ओ मे बी या कैन बी राइट। हाँ, इनफैक्ट दिस इज नॉट दैट रिस्पॉन्सिव, बट
या Yeah, it will work for this project, या or इन maybe दोनों के not. बीच स्पेसिंग हमें थोड़ा कम करना होगा फॉर स्मॉल डिवाइसेस, Yeah, दैट्स इट, उसके बाद ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। yeah. ओके, सो वी विल डू दिस थिंग एट द लास्ट। नाउ अब मैं आई होप करता हूँ कि ये हेडर वाला पार्ट, टॉगल का ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था, ये कैसे मैंने डिजाइन किया, ये बहुत हार्ड है, ये इतना इजी नहीं है जितना कि मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। And it could even come in the CSS interviews if कोई देना एग्जैक्टली देता है. ये मशीन कोडिंग राउंड में आपको ये होता है, एक बहुत सारे एक अकाउंट एक मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इंटरव्यूज वगैरह में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आप इस चीज़ को हमें बनाकर दिखाओ एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर बोला जाएगा आपको एक कैलेंडर बनाने के लिए, एक टॉगल बटन बनाने के लिए, कुछ भी एक And छोटा सा using मतलब। pure HTML, CSS and JavaScript, no framework and no एग्जैक्टली। other tool. Then आपको ये चीजें important मतलब काम आती हैं. So ओके, अब मूव करते हैं प्रणय कैलकुलेटर डिस्प्ले के की। डिजाइन पे. यस, विच इज द मेन फोकस ऑफ दिस. बट इसमें ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले प्रोजेक्ट में, थीमिंग. आई कैन सी अभी यहाँ पर ये एक इमेज आ रहा है, आई मीन एक छोटा सा इनपुट फील्ड आ रहा है जो कि मैंने अभी उसे डिसेबल कर दिया बिकॉज यू डोंट वांट कि इनपुट इसके अंदर हम टाइप करके लिख सके। बेसिकली मैं तो सोच रहा हूँ कि इसे इनपुट से हटाए दूँ, व्हाई टू गिव दिस एन इनपुट व्हेन दिस इज नॉट एन इनपुट। या इंस्टेड यू शुड गिव a div or a span. या दिस लुक्स कूल आई गेस। So let's give it a number 399 comma something, okay something। फिलहाल तो अभी कुछ आया नहीं है स्टाइलिंग, सो लेट्स गेट टू आवर CSS एंड स्टाइल इट। मैं सबसे नीचे जाऊंगा और लिखूंगा यहाँ पर एक, पहले तो डिफाइन करूंगा डिस्प्ले स्टाइल। कमेंट करना अच्छा होता है, कमेंट करने से कोड स्टाइल्स एक दूसरे से सेपरेट होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कंटेनर को टारगेट करेंगे। तो इस तरीके से लिखना बिल्कुल सही होता है, जब भी आपको कुछ भी एलिमेंट देना हो उसके एज ए ग्लोबल में डिफाइन करने से अच्छा है उसको किसी चीज़ में आप रैप करिए। जैसे मैंने हेडर एक रैप किया ना इन सभी चीज़ों के लिए, इसी तरीके से इसके लिए मैंने डिस्प्ले कंटेनर को रैप किया, मतलब कंटेनर के अंदर इस डिस्प्ले को मैंने रैप कर दिया और इसको फिर वेड्थ दीजिए आप 100%। मतलब जितना भी इस कंटेनर का वेड्थ होगा, मैं इसको बैकग्राउंड देकर दिखाता हूँ। इससे मैंने दिया रेड, अब यू कैन सी ये बिल्कुल आ रहा है पूरे फुल में। अब एक चीज ध्यान देने लायक है, मैंने बॉडी को एक विड्थ दिया होगा यहाँ पर शायद, बॉडी और विड्थ तो 100% है, कंटेनर को दिया है जो अपना कैलकुलेटर है उसको मैंने विड्थ दिया है 25 EM जो कि एक हार्ड कोडेड है। सो दिस इज गुड कि हम कंटेनर को एक हार्ड कोडेड वैल्यू दें, क्योंकि जो हम वैल्यू मतलब उसके बाकी जो एलिमेंट्स होंगे, जो चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, वो उस कंटेनर पर बेस्ड होकर रिस्पॉन्सिव बनेंगे और हमें बस उस कंटेनर का विड्थ चेंज करना होगा उसे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। मतलब जब छोटे स्क्रीन पर जाएगा तो हम उस कंटेनर के विड्थ को छोटा कर देंगे, जब बड़े स्क्रीन पर जाएगा तो एक सर्टेन लिमिट तक कर देंगे कि भाई कैलकुलेटर है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे स्क्रीन में ही फैल जाए, एक सर्टेन लिमिट तक भी बड़ा हो और उसके बाद वो फिक्स्ड रह जाए। तो हमें चेंज केवल एक एलिमेंट पे करना पड़ रहा है और रिस्पॉन्सिवनेस पूरे में आ रहा है।
रादर देन कि हम उसके सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को यार बड़ा हो, अरे यार स्क्रीन छोटा हो गया, अब हम उसके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके उसे चेंज करते आ रहे हैं छोटे स्क्रीन के लिए। सो दिस इज नॉट रियली अ गुड आइडिया फॉर स्टाइलिंग अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो ना, अब मैं इसको एक मार्जिन दूंगा, मार्जिन टॉप ऑफ 2 em। लेट्स चेक इट हाउ इट्स लुकिंग, इट्स लुकिंग कूल। लेट्स चेक हियर, इट्स लुकिंग फाइन। तो मैं इसके स्टाइल गाइड में जाऊंगा और चेक करूंगा कि ये इनपुट को किस रंग का मिल रहा था कलर। And Pranay, does the body have display flex property? बॉडी? Yeah. बट Then वाई you टू गिव then द बॉडी अ डिस्प्ले फ्लेक्स? because then you instead of that margin top 2 em you can use the gap. बट बाय माय बॉडी जस्ट कंटेनिंग अ कंटेनर वेव। Okay, okay, okay. You Then it's might, fine. you should, I mean you should, you are asking indirectly container having a flex or not, isn't Yeah, it, yeah, Vaibhav? yeah, exactly. I was asking about the parent. That was a good idea, Vaibhav. That was a good idea. But what But I'm, we don't need air since there's no other thing. just what we can do, we can give this display a margin top of 2 em and margin bottom of 2 em. Yeah, So yeah. That we should. गुड, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इसको 2 em ऊपर और 2 em नीचे भी दे ही देता हूँ यहीं पे। प्रणय ये तो साइड में हो हाँ गया। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सॉरी। अब ये 2 em ऊपर भी चला गया और 2 em नीचे भी आ गया, जो कि फिलहाल अभी पता नहीं चल रहा है नीचे वाला, वो जब कुछ नीचे और कुछ एलिमेंट आएगा तो पता चलने लग जाएगा। तो मैं स्टाइल गाइड में जाके देखता हूँ कि इनपुट जो है, कीपैड बैकग्राउंड नहीं, वो है स्क्रीन बैकग्राउंड। ओके, सो दिस इज तीसरा कलर बैकग्राउंड का। सो मैंने उसको क्या नाम दिया है अपने वेरिएबल में, BG3। तो यू कैन सी मुझे बस एक कलर देना पड़ रहा है, जो थीम तीनों में क्या है, सेम है, और वो उसी हिसाब से काम करेगा, जो थीम जो भी यूजर अपना जो यूज करे। ओके, सो नाउ यू कैन सी उसके कलर्स को। अच्छा हाँ, कलर यार, स्टाइल गाइड, वेयर इज द स्क्रीन कलर? ओके, स्क्रीन कलर, वेब कैन यू find this? Yeah. Can you show me the image? Yeah, okay, this is yellow, so It this is can the be fine. key color maybe. Yeah, It, this and it is is this. CLR text 2, I guess. Yeah. Let's give it a try. Let's give it a try. CLR text 2. Yeah, it's fine. It's fine. Now you can see मैंने बस यहाँ पर एक कलर चेंज किया और अभी भी ये थीम काम कर रहा है. So this is the magic of themes and JavaScript, all this stuff. Okay, okay. So now let's give it a separate this thing and give it a font size of 2 em. Okay, not font size of 2 em, so make it large. Okay, now this looks too too small. This is more large, I mean big. I think 2.5 should work. That should be enough. Yeah, that is really enough. And you can see the margin is getting more high as I'm increasing this. So that because margin is actually affected by the font size, so I will give it rem. So yeah, affect now is the font size. So now I will give it. So this is okay. Now text align right. Okay. Now I will give it a padding. Padding of what I can give. On the top 1 em, on the left right 0.5 em. Yeah, it's cool. Yeah, it's cool. Perfect. Perfect. I mean ऊपर से कुछ ज्यादा नहीं लग रहा, टॉप नहीं एंड नहीं बॉटम। नहीं, दिखाना एक मिनट। नहीं नहीं सही है। सही, ओके ओके, अगर होगा तो बाद में चेंज कर लेंगे इसको, अब कौन सा। बॉर्डर रेडियस रह गया। ओके, now border radius to 10 pixel. Yeah, I think it's more. I mean it's less. ये ज़्यादा कर दिया मैंने. No, it's fine. It's fine. Now you can see this is looking amazing. And just कहते हैं 2-3 लाइन का कोड लिखा और पूरा CSS रेडी. दिस ये कलर्स का कमाल हो जाता है कभी कभी वेरिएबल्स डिफाइन करने का. ओके, नाउ चलिए हम जल्दी से अब अपने आगे वाले कीपैड पर चलते हैं. सो ये कीपैड क्या कर सकते हैं, हम इसे ग्रिड डिफाइन कर सकते हैं. ये फर्स्ट क्लास में बताया था हमने बेसिक आइडिया इसका कि हमको ग्रिड्स में बांटना है इसको।
एंड जो लास्ट की दो कीज है उनको हमें स्पेंड करना है दो दो कॉलम्स में। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 1 2 3 4 मैं इसमें देखिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं 7 8 9 डिलीट ऐसी तरीके से डिफाइन करूंगा। फोर मैं क्या बाई फाइव करूंगा, की बना देते हैं, है ना? div डॉट की डॉट की 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा तो लिखना पड़ता ही है। ओके, सो मैं यहाँ पर एक और ऐड कर दूंगा। तो एक मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली की जीरो को ऊपर रखना चाहिए। और क्या करना है अपने को, और नंबर्स तो कुछ रह नहीं गए, 10 नंबर्स होते हैं, अब ऑपरेटर्स रह गए। हाँ, ये तो, ये क्या है की, दिस इज की प्लस, आई और थिंक इन्हें हम्म इसको उसी उसमें रखते तो ज्यादा बेटर रहता, सीक्वेंस में। सीक्वेंस में या ऐसे 7 8 9, या वाई नहीं तो फिर वो कठिन हो जाएगा ना। कठिन। मैं हम्म। यही तो चाहता हूँ कि मैं इनको ग्रिड के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। ओके ओके। मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ ताकि मैं इनको ये बता सकूँ कि कोड भी एच कैसे टी सही एम एल लिखा को, जाए, यस। और फिर उसे भी किस तरीके से बढ़िया बनाया जाए। देयर इज एन एरर इन द की जीरो, तूने 9 लिख रखा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। एंड डेल एंड इक्वल टू, डेल रीसेट एंड Del reset and इक्वल एंड अ पीरियड। a period. Yeah, that is also important. So div dot p dot p period dot div dot p reset dot p dot p. What is left above? Equal. डेल एंड इक्वल। एंड दे आर अपर केस, बट Okay, we will change it with the CSS. No. Even it is recommended to change the upper casing or lower casing or camel casing or any kind of casing with the CSS only. So this might change by some any other coder which is going to change in the code. so now we will Okay. target the keypad container. This is a style which I follow. This is not necessary to follow. This just looks cool, so I am following it. Fancy stuff in CSS. Once a designer, always a designer. ओके, सो सबसे पहले क्या करना होगा, कीपैड को भाई ग्रिड ही कहना होगा ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। कीपैड जिसके लिए वो पैदा हुआ है। डिस्प्ले टू सेट टू ग्रिड। अभी देखते हैं हालात अभी है क्या। तो हालात कुछ ऐसा है। ग्रेट इसका टेम्पलेट कॉलम। बैकग्राउंड, अब इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, सेट टू रेड करते हैं। ओ भाई साहब, पूरे में है कम से कम, ये अच्छी बात है कि बैकग्राउंड है भी। तो बैकग्राउंड कल वही वाला डिस्प्ले वाला। हाँ, सही बोल रहा है। सही। कलर BG3 या BG3। ओके ओके,
and same border radius. and same color too. I mean, few of the keys are having different color, but most of the keys are having the same color. But why there are so many keys? I'm just wondering why they're giving us so many key, background key, shadow. When we मैं are तो using the calculator, then also we think that. जब साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी लगता है ना, अरे यार इतनी क्यों दे दी यार, ये m प्लस का मैं क्या करूंगा. okay, so font is still the key font text too. तो मैं ऐड ही कर देता हूँ ये लार टेक्स्ट टू Working, it is working. ओके इट्स वर्किंग And grid template column and rows. GTC. ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे करूंगा 4. टू 1 FR Oh. 4 वैभव 4 है हाँ. क्या हाँ. ओके 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 And 5 in the upward, मतलब ओके vertical direction. टेम्पलेट रोज 5 into 1 FR so let's see how this is looking हाँ you can see ये खुद ब खुद सेटअप हो चुका है अपने ग्रिड वाले फॉर्म में अब मैं इसको क्रोम से जाऊंगा आई मीन क्रोम क्रोम इंस्पेक्ट करूंगा और जब इस पे जाऊंगा यू कैन सी नॉट हियर नॉट ओके मुझे यहाँ से जाना होगा नाउ यू कैन सी हियर कीपैड कंटेनर इज ए ग्रिड मैंने इसको ग्रिड पे क्लिक करते ही ये अपने पूरे असली अवतार में आ चुका है अपना ये मल्टी डायमेंशनल अवतार दिखा रहा है ये इसके Matrix. अब ये इसके नंबर्स हो गए और हमें इन नंबर्स का हेल्प करता है आई मीन हेल्प लेते हुए इनको क्या करना होगा चेंज करना होगा लेकिन मैं उससे उससे पहले ये नहीं ग्रिड, करूंगा ग्रिड गैप प्रण. मैं क्या करूंगा ग्रिड एक आई थिंक ग्रिड मैं गैप भी अभी दे दे प्रण. ये भी सही बोल रहा है तो बाद में नहीं बहुत तो आना पड़ेगा. 0.5 चल जाएगा. वही दे रहा हूँ एक्सपीरियंस. तो पैडिंग भी यही देता हूँ ये वो बात तो तो की को देनी पड़ेगी ना, डॉट की. हाँ ये बात भी सही बोल रहा है नहीं पैडिंग इसको भी तो है ना अच्छा हाँ. कहीं पॉइंट कहीं फाइव मैं भी सही बोल रहा हूँ हम्म. ये भी 0.5 है शायद. ये 0.5 नहीं है ये उससे ज्यादा है ये एक ही एम से ज्यादा है अच्छा हाँ सही है. अच्छा अभी एक एम देता हूँ अभी और एक ही एम बॉर्डर था. रेडियस देता हूँ बाकी तो बाद में देखा जाएगा ये इस वाले में पता नहीं चल रहा आपको तो चल रहा खैर मैं जैसे यहाँ पर जाता हूँ और अभी ये बचपन में जो वॉच आती थी ना, जो जिसमें सारा कैलकुलेटर होता था, वैसे लग रहा है. ओके फिलहाल तो अभी ये पूरे में क्या फैला फैला सा लगा नहीं ये काइंड ऑफ सूट लग रहा है सूट स्कूट कर रहा है बट नॉट दिस वन ये तो रायता सा फैला लग रहा है. तो उससे पहले हम क्या करेंगे एक चीज डिफाइन करेंगे की 1 ग्रिड एरिया 1 ठीक है मैं इसको जल्दी से कॉपी करता हूँ इसमें क्या होगा थोड़ा सा CSS ज्यादा हो जाएगा अगर SCSS होता तो, SCSS होता तो हम क्या लूप चला लेते या इसको जावास्क्रिप्ट से लिख ले. रहने दे, अरे हाँ, नहीं कंसोल में कह रहा हूँ, कंसोल में वहां पे ऐसे कॉपी कर लेना. नहीं हो गया कॉपी पेस्ट कर नाइस. अब इनके ग्रिड एरिया तो चेंज करने पड़ेंगे ना फिर. वाई ग्रिड एरिया क्योंकि वो एक्चुअल में वहां थोड़ी ना है. नहीं नहीं वो बस ये नंबरिंग होता है ये नाम होता है मतलब ओ अच्छा अच्छा. ओ अच्छा अच्छा, समझ गया मैं.
नहीं, तो ये तो सीधे कैसे हो गया इसकी वजह से? वो इसमें कुछ गलतियां भी होती है। यहाँ पे आप DRY को इग्नोर कर सकते हैं। किसको किसको इग्नोर? डू नॉट रिपीट योर सेल्फ को। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि मैं इस ग्रेड एरिया को बता सकूं। वैसे तो वो जो हमने शुरुआत में बोला वही तरीका सबसे बेस्ट है फिलहाल इस चीज के लिए तो। कोई बात नहीं, कल मैंने भी किया था उसका चेक विन कर करके। हाँ। उसके बाद क्या बच गया है? की पीरियड, की रीसेट, की इक्वल, की डिलीट, बस चार ही बचा है गाइस। थक गया क्या प्रणय? सही बोल रहा है भाई। 200 रुपये ले और 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग का। इक्वल हो गया, रीसेट हो गया, डिलीट एंड पीरियड। तो फाइनली वी आर डन एंड द यूआई इज कंप्लीटली लाइक टॉर्चर्ड। अब हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे बेसिकली एंड ग्रेड टेम्पलेट एरियाज। और यहाँ बिल्कुल जादुई तरीके से चेंज करेंगे। 7 8 9 डिलीट, 7 8 9 एंड डिलीट डिलीट। दूसरे वाले पे क्या है? 4 5 6 एंड प्लस, 4 5 6 एंड प्लस। तीसरे पे क्या है? 1 2 3 एंड माइनस 1। ओके ओके ओके, 1 2 3 एंड माइनस। चौथे पे क्या है? पीरियड जीरो स्लैश पीरियड जीरो देव। इसको डॉट ही कह देते तो बढ़िया रहता। छोड़ रहा है। एंड उसके बाद है रीसेट, और रीसेट दो में फैला है। अगर देखेंगे गौर से तो इक्वल भी दो में फैला है। देखो, इससे फायदा ये हो गया कि स्पेन वाली प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ेगी। अब हम चेक करते हैं, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं हुआ है। सो देयर इज सम एरर इट मींस। सो लेट्स फाइंड आउट कि एरर है क्या। कॉमा तो नहीं लगाना था। नहीं नहीं, कॉमन नहीं लगता। सो मैंने नेमिंग में जरूर कुछ गलत किया होगा। दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज कमिंग। की वन ग्रेड एरिया वन, की टू ग्रेड एरिया टू, की थ्री, की फोर, की फाइव, की सिक्स, की सेवन, की प्लस, की माइनस, की मल्स, की डिवाइड, डिव, इक्वल, रिसेट, डिव, पीरियड। अगर कुछ टाइपो दिखे वैभव तो बताना। 7 8 9 डिलीट, 4 5 6 प्लस, मे वन। बी नंबरिंग वर्क नहीं करती। नो नो नो, नंबरिंग वर्क्स, नंबरिंग वर्क्स। नहीं शायद, एक बार चेक कर लेना इंस्पेक्ट करके। आई फील सो। मुझे भी लग रहा है ऐसा नंबरिंग काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। वो बता देगा ना वो कि इनवैलिड प्रॉपर्टी होगी तो वहां पर एक्सक्लेमेशन। एक बार मैं स्पेलिंग यहाँ भी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चलूंगा वहाँ पे। की डिव, की मल, की माइनस। डैश ही लगाया ना सब में, कहीं अंडरस्कोर तो नहीं। नहीं, अंडरस्कोर की तो हैबिट नहीं है मेरी।
ओके, एक्चुअली दिस इज हैपनिंग बिकॉज आई एम मिसिंग वन की। माइट बी ये उसकी वजह से काम कर रहा है, और मैंने पूरा क्या कर दिया, कुछ ये कर दिया। तो वो बैक कर दे कंट्रोल जेड। रहने दे। नहीं, पहले ऐसे जीरो। चेक, पहले ऐसे चेक कर लेते हैं, उसके बाद हाँ वैसे सही करेंगे। बात है, जीरो तो रही है। अरे भाई, मजदूरी। क्या करना पड़ता है पढ़ाने के लिए। सोनू समझ आ रहा है क्या? इतना मेहनत किया, नहीं समझ में आएगा। एंड नाउ इट्स वर्किंग माय फ्रेंड। मजा आ गया। अब बैकग्राउंड कलर कर दे पहले तो बढ़िया सा। की बैकग्राउंड, दिस इज की वन। कर कहाँ रहा है? CLR की वन। तो आज फंक्शनैलिटी डालेंगे इसमें। फंक्शनैलिटी अगली क्लास में डालेंगे। नहीं ये नहीं है शायद। ये तो पता ही नहीं। पता ही नहीं है। की टू ट्राई करते हैं। फिर ये की बैकग्राउंड लिख क्यों रखा है? वो तूने गलती की होगी ना, बीजी नाम से देख ले। भाई की बैकग्राउंड लिख तो रखा है। 1 2 3 4 5 6। की बैकग्राउंड दो दो जगह लिख रखा है। हाँ तो 1 2 3 तीसरा ट्राई कर ले। अच्छा था, मजाक। टीम वन में चेक करते हैं। ये मुझे की फाइव क्यों लग रहा है अपना? की फाइव है क्या? लाइट की बैकग्राउंड। नाइस। भाई यहाँ भी लिख रखा है। नशे में थे ये लोग। अरे वो हवर वाला है की बैकग्राउंड, समझा? अच्छा, फिलहाल की फाइव इन्होंने लिखते स्टेट नहीं हैं। लिख रखी। चलिए। बधाई हो, आप ट्रिक किए जा चुके हैं। ये तो कतई नहीं लग रहा कि है। यही है, यही कतई यही है। यही है। यही है। अच्छा कलर बदलना पड़ेगा क्या? एग्जैक्टली, बिल्कुल तैयारी है फिर। शाबाश खैरी। कॉपीराइट आ जाएगा वार्नर ब्रदर्स का। इतना अच्छा नहीं बोल रहा तो। क्योंकि ये डम्बल क्या कर रहा है, वेब डेवलपमेंट। ये क्या है? टेक्स्ट वन है अपना। ये करेंगे। नेमिंग कलर करना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। टेक्स्ट, CLR टेक्स्ट। तुझे नेमिंग आती नहीं है। अच्छा। तूने नंबर में दे रखा है, इससे अच्छा ऐसे देता कि हवर स्टेट बैकग्राउंड। ओके, तो ये सही लग रहा है मुझे फिलहाल तो। मजा आ रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। इसका या पहले फॉन्ट फेड। साइज बढ़ाते हैं ताकि हाँ ऐसे देखे। मेरे आंखों आंखों को भी दिखे कम से कम। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर से काम बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये और बड़ा है। ये दो ही है मैं शायद। है ना? हम्म। टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही कर देते हैं, फालतू में डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों करें। चेक कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और पैडिंग दे देंगे फिर। टैग। है ना, पैडिंग। सही लग रहा है दोस्तों। बैक बॉर्डर रेडियस देना, और ग्रेड गैप थोड़ा कम से नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा है दोस्तों। तो चिपके चिपके से पड़े हैं। हाँ अभी मजा आया ना बेडू। यार इसको थोड़ा छोटा सा करना पड़ेगा। ये पूरा कैलकुलेटर पूरी जगह घेर रहा है। बॉर्डर रेडियस देंगे अभी। ये इसके फॉन्ट साइज जो है ना थोड़ी कम है, या तो फिर उसने डिजाइनिंग वैसे कर रखा है अजीब सा।
अरे हाँ, ये इनका दिक्कत ही रहता है, और ये स्क्रीनशॉट ये अलग ले। अलग स्क्रीन साइज के लिए डिजाइन कर देते हैं और हम बेचारे बच्चे फिर तंग होते हैं। इनके पास मॉनिटर होता है ना। मेरे पास नहीं है तो एक फायदा उठाते हैं। पर कोई नहीं। सह लेंगे थोड़ा। इसमें एक चीज और इन्होंने दिया है, नीचे में एक छोटा सा फालतू का वो भी दिया है, बॉर्डर भी दिया है। बॉक्स शेडो। नहीं, बॉर्डर दिया है। अच्छा, बॉर्डर दिया है। दिखता भी नहीं उसी है को वो। उन्होंने शैडो बुलाया है अपने भाषण में। ओ अच्छा। और क्या कलर दिया है भाई यार, ये मत दिया कि शैडो आखिरी वाला। डैश डैश कलर की 6। पता भी नहीं मुझे चल दिख रहा। सा क्यों नहीं रहा ये। कंट्रोल प्लस करके देखना पड़ेगा। मान हाँ लेते ये हैं आ गया। आ गया है, आ गया है, आ गया आ है, मान गया लेते हैं। हमें तो पता भी नहीं है आ गया कि नहीं। है। एक्चुअली बॉर्डर बॉटम था, मैंने सबको दे दिया। हाँ, तभी कहूँ क्यों नहीं दिख रहा। हाँ, अब ये दिख रहा दिख दिख रहा दिख रहा है। अब ये दिख रहा है। और ये बेटर दिख रहा है कि पता नहीं। वैसे तो ठीक सा लग रहा है। लेकिन ये नॉट। उतना अच्छा सा नहीं लग रहा, मुझे क्यों पता टू नहीं। पिक्सल कर दे, 2 पिक्सल। नहीं ये देख तू, ये इसे 2 पिक्सल में करके हाँ। देख। ये अंदर सा लग रहा है ये। आउटलाइन आउटलाइन बॉटम करके देख ले एक बार। ऐसे। हाँ। आउटलाइन बॉटम। ये 4 पिक्सल है, इसको मैं बढ़ा के 8 करता हूँ बॉर्डर रेडियस। हम्म। हाँ अब ये सही लग रहा है, सही बोलूं तो। से लगा तो हम्म। अभी भी सही नहीं था, ये दूसरा ही टाइप का लग रहा है। अरे सही है बट यार। ये कभी भी मैच नहीं करता है यार, मतलब ये हाँ, समझ ले कि इसी टाइप का होता है ये, मतलब अगर मैं चाहूंगा ना एग्जैक्टली मैच कर दूं तो वो मैच नहीं करता, वो दूसरे मीन स्क्रीन के लिए डिफाइन करते कोई हैं। बात नहीं, हमने मान लिया काम करके। हाँ इवन लगभग मैच कर रहा है तो फिर वो कर रहा है। चलता है। चलता है दोस्त। बैकग्राउंड दे दे अब, रीसेट और हवर स्टेट दे दे। फिर उसके बाद इनको करते हैं। इनके बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ, रीसेट का बैकग्राउंड कुछ और है। ये एक्टिव स्टेट खोल रखा है तूने? सच में। हाँ। हाँ, ये सही है। बता लिया तुमने। कौन सा है वैभव। थीम 1 में था कि थीम 2? थीम वन में किसी की वन है मुझे लगता है, और 1 उसका या 2 नीचे वाला ट्राई कर ले। तो की टू है। हाँ, वो शेडो हो गया। तो मैं की वाले ये दोनों का करता हूँ, कॉपी करता हूँ। रिसेट में लगाना है ना। और फॉन्ट की वन। लेट्स सी। सही सा नहीं लग रहा ये कलर तो वो नहीं है, अरे अरे। मैंने अच्छा अच्छा अच्छा, फॉन्ट तो मैंने चेंज ही नहीं किया ना। फॉन्ट भी तो चेंज करना होगा ना। फॉन्ट क्या है। फॉन्ट क्या हो सकता है, यहाँ तो अंदाजा लगाना पड़ रहा है तो। वाइट सा लग रहा है ना मुझे। तो आपको भी लग रहा हो। ये लड़ हाँ वाइट ही है भाई, वाइट ही है। क्या हो गया? CLR नहीं, नथिंग नथिंग, समझ गया था सेकंड। ये हमेशा वाइट ही रह रहा है। क्या? फॉन्ट आई मीन कलर उसका। डिस्प्ले का? रीसेट का। अच्छा अच्छा। कॉन्टेक्स्ट तो ले लेते हैं। ना अभी लग रहा है ना बिल्कुल असली। ओ भाई मैं अंधा हो जाऊं। ये बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों इन्होंने क्या मस्त बनाया इस चीज को। ये येलो सा क्यों नहीं है ये क्योंकि? कलर यार चेंज क्यों नहीं हुआ यार इसका ये। अरे गलत लिया। मुझे लगता है कि मैंने कलरिंग में कुछ मिस्टेक कर दिया। हाँ, इसको मुझे थोड़ा करेक्ट रेक्टिफाई करना होगा। तो करे ना।
कर रहा हूँ ना भाई, कर रहा हूँ। हम भी परेशान हैं। तुम परेशानी बहुत होते हो। अगर टेक्स्ट टू है शायद। हाँ टेक्स्ट टू है, मैंने टेक्स्ट कर दिया है। ये रहा। अब ये लग रहा है ना अपना स्वीट सा। डिलीट अच्छा करके अच्छा। बैकग्राउंड कर देना। अब ये इस पे नहीं है भाई, ये यार अरे क्या ये है, इसका अरे धोखाधड़ी है मेरे साथ ये। टीम वन के साथ अपोजिट हो गया बस वो। मतलब ये लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है मुझे अपने थीम, मैंने जो यहाँ पे क्रिएट किया है ना, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया थीम लिखने में। थीम टू के साथ प्रॉब्लम आ रहा है। थीम टू के साथ ये, यार टेक्स्ट टू तो ब्लैक है, तो फिर ये थीम, अच्छा ये थीम वन में पुनः सही बोल रहे हैं आप, थीम वन में प्रॉब्लम आ रहा है। ये टेक्स्ट टू जो है वाइट नहीं है, क्या आई है, एम ऑलवेज राइट। फालतू हो जाता। थीम वन में ये इन्होंने उल्टा कर रखा है शायद। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है इसमें? ये डिस्प्ले का कलर कैसे ऊपर चला की गया? चीजें कहाँ चली गई? कंट्रोल जेड कर। एक सेकेंड। ये प्रॉब्लम है ना, ये ऊपर की चीजें भी चेंज हो रही हैं, बट शुरुआत में ऊपर की जो चीज है वो है नहीं ये। मतलब गाइस मुझे कंट्रोल जेड कर। ये करना होगा, सेव टेक्स्ट टेक्स्ट थ्री। थ्री। उन्होंने लिख के नहीं रखा है, वो बड़ा बहुत ही पागल लोग हैं। अरे फिर मैंने किस में चेंज कर दिया? फिर करना तो इसमें भी पड़ेगा ना यार, में इवन में। सेकंड वाला हाँ। और फिर इसमें जहाँ जहाँ भी मैंने दिया है टू, अरे इससे अच्छा जो टू था उसको थ्री कर देता ना नीचे। एक सेकंड, तो हाँ अच्छा ठीक है, वो से भी किया जा सकता है, बट मैंने कर दिया था तो चलो, अब ये सही काम कर रहा है। नहीं कर रहा। वहाँ पर नहीं कर रहा, फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत है? डिस्प्ले अच्छा, कलर। डिस्प्ले, आई थिंक ये हमेशा वाइट ही तो रहता है ना, चेक करता नहीं। हूँ मैं। नहीं, ये भी चेंज हो रहा है, इसको भी मैं, मुझे करना होगा कीपैड कंटेनर, कीपैड कंटेनर, कीपैड कंटेनर कलर सेट टू थ्री। दिस इज द करेक्ट कलर, दे आर गिविंग द रॉन्ग कलर, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग। तूने फाइव डाल दिया है। अच्छा नहीं थ्री डाला। एक बार कंट्रोल जेड करके है ना और उसको थ्री में कर, उसको केवल नीचे ही थ्री कर। The problem is in the key. See, the key 3 is text 3 in this theme 1 is white. It should be white. Okay, अरे वो तो कॉपी होना था ना टेक्स्ट टू और टेक्स्ट थ्री। गर्म पानी भी होगा फिर तो। I'm doing it at the wrong place. Keypad container. Now it is correct. Okay. Now that bug is gone, and now we are done with the styling. Okay, one more styling is left. This is red. I don't know. Four. So ये क्या है? इक्वल 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 करूंगा इन तीनों चीजों को कॉपी, and key 3 and border is taking key 4 and
टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट इज जो पहले वाले का है वही। एंड डेल वाले पे भी सेम पेस्ट कर दूं? नाउ दिस इज प्रणय की डेल पे। की व्हाट? की डेल। Oh, this having the same thing. हम्म। Okay, 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 okay. Thank you. Boss, परफेक्ट। तो आज पूरा शो यहीं खत्म होता है, कल फिर मिलेंगे। कल इसमें डालेंगे फंक्शनैलिटी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आज बहुत तो ज्यादा कोड हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। इसमें कुछ हॉवर इफेक्ट्स भी डालने पड़ेंगे, तो वो हम कल डालेंगे। डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय। यस शुभम।